یہ آل انڈیا ریڈیو سرینگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ ملک میں 74ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں شائع نشان تقریبات کا انعقاد۔ نئی دلی میں منعقدہ پریڈ کے دوران ملک کی فوجی طاقت، ثقافتی گوناگونیت اور اقتصادی ترقی کی بھرپور عکاسی۔ جموں و کشمیر میں بھی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا 74واں یوم جمہوریہ۔ پریڈوں پر خصوصی مہمانوں نے مارچ پاسٹ پر لی سلامی۔ ایل جی کے مطابق یو ٹی میں حالات رفتہ رفتہ ہو رہے ہیں بہتر۔ حفاظتی عملے کے کام کی ستائش۔ ترقیاتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کو کیا اجاگر۔ اور پھول بھانی کو بڑھاوا دینے کے لیے 39 کروڑ روپے کا ایک میگا پروجیکٹ منظور۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج نہایت ہی جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ 74واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ اس تعلق سے پورے ملک میں شائع نشان تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سب سے بڑی تقریب نئی دلی میں کرتویہ پتھ پہ منعقد ہوئی، جہاں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے یوم جمہوریہ منانے میں قوم کی قیادت کی۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی پریڈ پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر آج الصبح وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی وار میموریل پر گل دائرہ چڑھا کر ملک کے لیے اپنی جانیں نشاور کرنے والے بہادر فوجیوں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ روایات کے مطابق قومی جھنڈا لہرایا گیا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کرتویہ پتھ پر یوم جمہوریہ پریڈ پر سلامی لی۔ آکاشوانی کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ یوم جمہوریہ پریڈ کے دوران ملک کی فوجی طاقت، ثقافتی گوناگونیت، خود انحصاری کے اقدامات، اقتصادی ترقی، خواتین کی بااختیاری اور ابھرتے ہوئے نئے بھارت کی بھرپور عکاسی کی گئی۔ پہلی مرتبہ یوم جمہوریہ پریڈ میں ایجپٹ کے فوجی دستے نے بھی شرکت کی۔ نمائندے کے مطابق بھارتی فوج کے 6 دستوں، ایئر فورس کے 1 اور بحری فوج کے 1 دستے نے پریڈ میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ساتھ مختلف وزارتوں اور محکموں کی 6 جھانکیوں نے کرتویہ پتھ پر پریڈ میں شرکت کی۔ قومی سطح کے وندے بھارتم ڈانس کے مقابلے کے ذریعے سے منتخب کیے گئے 479 فنکاروں کی کارکردگی نے پریڈ کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ پریڈ کے دوران انڈین ایئر فورس اور بڑی و بحری فوج کے جہازوں نے دلچسپ انداز میں ایک ایئر شو پیش کیا۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ قومی ترانہ پیش کرنے اور سہ رنگی غبارے چھوڑنے سے اختتام پذیر ہوئی۔ ایک ہفتہ طویل یوم جمہوریہ تقریبات عظیم مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے جنم دن کے موقع پر 23 جنوری کو شروع ہوئی تھی اور یہ تقریبات 30 جنوری کو شہیدوں کے دن کے موقع پر اختتام پذیر ہوں گی۔ ادھر جموں و کشمیر میں بھی 74ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں بے مثال تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن کے دوران مہمان خصوصی نے قومی پرچم لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ یو ٹی سطح کی سب سے بڑی تقریب جموں کے مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے قومی جھنڈا لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ بعد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں اور دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2022 کے دوران شہری ہلاکتوں میں 55% کمی رونما ہوئی اور سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں میں بھی نمایاں گراوٹ دیکھنے کو ملی۔ منوج سنہا نے کہا کہ حفاظتی ایجنسیوں نے جموں و کشمیر میں دائمی امن قائم کرنے کے لیے ملیٹنسی اور اس کے پورے نظام کو ختم کرنے کے لیے حتمی کارروائی شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایل جی انتظامیہ اور مرکزی سرکار نے جموں و کشمیر میں کام کر رہی سلامتی ایجنسیوں کی بہبودی کے لیے متعدد اقدامات شروع کیے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں پورا جموں کشمیر کا پرشاسن، جموں کشمیر کی عوام اور پورا ہندوستان ان بلیدانیوں اور ان کے پریجنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آتنک اور بھوکمری کا پریار بن چکے پڑوسی ملک کے اشاروں پر جو لوگ بھی مانوتا کی بربر ہتیا میں شامل ہیں، انہیں میں کہنا چاہتا ہوں خون کی ایک ایک بوند اور آنسوؤں کے ہر ایک قطرے کا حساب ہمارے پولیس بل اور سرکشا بلوں کے جوان نشچت روپ سے آنے والے سمے میں لیں گے۔ انہوں نے مزید
मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित बरादरी की जमीनों और जायदाद पर नाजायज कब्जा हटाया जा रहा है और इंतजामिया इस जायदाद को वापस पंडित बरादरी को सौंपने की जिम्न में काम कर रही है। एलजी ने कहा कि पीएम पैकेज मुलाजमीन के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में सभी पीएम पैकेज कर्मचारियों को सुरक्षित जगहों पर तैनात किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में तथा राजभवन में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। लंबे समय तक उनके आवास को जमीन नहीं मिलती थी, पद नहीं भरे जाते, उसे भी हल किया गया है। जमीन आवंटित कर दी गई है। 2 को छोड़ करके शेष स्थानों पर काम शुरू हो गया। 1200 घर अप्रैल माह में 1800 घर दिसंबर तक हम देने जा रहे हैं। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना के मुताबिक एलजी ने इस मौके पर उन तरक्याती इकदामात का तफसील से जिक्र किया जो इंतजामिया की तरफ से जम्मू और कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाने के लिए किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि श्रीनगर और जम्मू में अनकरीब ही मेट्रोज तामीर किए जाएंगे। इलावा अजीम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जंगी बुनियादों पर ट्यूब भी तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में पहली मरतबा ख्वातीन के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम किए जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी इंतजामिया ज़रूरी शोबे को फरोग देने की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। प्यारे भाई और बहनों, आजादी के अमृत कालखंड में हमने कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को अतीत के बंधनों से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के नेतृत्व में बनी एपेक्स कमेटी ने एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया है, जिसे मंजूरी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। श्रीनगर में 74वीं यौम जमहूरिया के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब एसके स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, पुलिस, फायर सर्विसेज, एनसीसी और दीगर टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए बशीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया की बेलोस काविशों की वजह से जम्मू और कश्मीर अब तरक्की की एक नई राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि यूटी, तिब्बी निगहदाश्त, तालीम, ज़राअत, बागबानी, बिजली, पानी, सड़क राबतों और दीगर तमाम शोबों में मियार की बुलंदियों को छू रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को अगले बरस मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ रेल के जरिए से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत 8 अरब 81 करोड़ रुपए की लागत से 146 प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए, जिनमें से 115 प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल किए जा चुके हैं। उन्होंने तिब्बी शोबे की हुसूलियाबियों का तफसील से जिक्र किया। 4000 करोड़ रुपए की लागत से जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू में इसका कार्य इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। कश्मीर में इसका कार्य 2025 तक पूर्ण होगा। 1595 करोड़ रुपए की लागत से 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, 212 करोड़ रुपए की लागत से 2 कैंसर संस्थान तथा 7000 करोड़ रुपए की लागत से 350 स्वास्थ्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 881 करोड़ रुपए की 140 परियोजनाओं में से 115 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं और शेष 25 प्रगति पर हैं। श्रीनगर और जम्मू के बीच यात्रा का समय 10 घंटे से घटकर 5 घंटे रह गया है। श्रीनगर और शारजाह के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो गई हैं। जम्मू और श्रीनगर में 2 नए एयरपोर्ट टर्मिनल आ रहे हैं। किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए जम्मू और श्रीनगर हाई अड्डों पर कार्गो सुविधा प्रदान की जा रही है। कश्मीर अगले साल तक रेल नेटवर्क के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू और श्रीनगर शहर में 10,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लाइट मेट्रो रेल का काम इस वर्ष शुरू हो जाएगा। दरियासना जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में भी हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यौम जमहूरिया तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिली सतह पर खुसूसी मेहमानों ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मुख्तलिफ जिलों में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि इन परेडों में सीआरपीएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस, आईआरपी, फायर सर्विसेज, एनसीसी दस्तों और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। नुमाइंदों ने मजीद इत्तला दी है कि नाखुशगवार मौसम के बावजूद भी अच्छी खासी तादाद में लोगों ने इन तकारीब में शिरकत की। अनंतनाग में
TDC चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। बारामुल्ला में DDC चेयरपर्सन सफीना बेग, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में चेयरमैन DDC इरफान सुल्तान पंडितपुरी, गांधरबल में DDC चेयरपर्सन नुसरत अशफाक, बांडीपुरा में DDC चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, पुलवामा में DDC चेयरमैन सैयद अब्दुल बारी अंद्राबी, बडगाम में DDC चेयरमैन नजीर अहमद खान, शुपियां में DDC चेयरपर्सन बिल्किस जान, जबकि कुलगाम में DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। पुंछ में DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर ने कौमी झंडा लहराया। इसी तरह की तकारीब तहसील हेडक्वार्टरों पर भी मुनक्किद हुई। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से 74वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया। हाईकोर्ट की जम्मू शाख में कायम मकाम चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तान ने कौमी झंडा लहराया और शहीद फौजी एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया। तकरीब पर अदालत आलिया के मुतादिद जज साहबान, दीगर अफसरान और वकला भी मौजूद थे। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने हाईकोर्ट की श्रीनगर शाख में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। इस मौके पर कौमी तराना पेश किया गया और हुब्बुल वतनी की धुनें बजाई गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जवाद अहमद ने कौमी झंडा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने अपने दफ्तर के अहाते में कौमी परचम लहराया और CRPF दस्ते से सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद अफसरों और हिफाजती अमले के एहलकारों को मुबारकबाद दी। जैकले रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में भी पुरजोश तरीके पर 74वां यौम जमहूरिया मनाया गया। इस मौके पर वहां वार मेमोरियल पर गुलदारा चढ़ाया गया और कौमी झंडा लहराया गया। तकरीब में रेजिमेंटल सेंटर के तमाम अफसरों ने भी शिरकत की। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी और सालमियत को बरकरार रखने के लिए तमाम तबकों को बाहमी इश्तराक से काम करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करने वाले एहलकारों को भी खराज अकीदत अदा किया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के इहाते में स्टेशन के सरबराह अजय दोहारे ने दीगर मुलाजिमीन की मौजूदगी में कौमी तिरंगा लहराया। इसी तरह की तकरीब दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी मुनाकिद हुई, जहां केंद्र के सरबराह S संजीव ने कौमी परचम लहराया। वजारत दिफा ने मिलिटेंसी का मुकाबला करने के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए सीनियर ग्रेड कांस्टेबल रोहित कुमार को बाद-अज़-मर्ग कीर्ति चक्र, जबकि कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद को बाद-अज़-मर्ग शौर्य चक्र से नवाजा है। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने इन बहादुर एहलकारों के कुंबों को मुबारकबाद देने के साथ साथ वजारत दिफा का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने यूटी में फूल बानी शोबे को बढ़ावा देने और इस सेक्टर के तमाम वसाइल को बरोकार लाने के लिए 39 करोड़ रुपए लागत वाले एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ज़राअत महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने कहा है कि प्रोजेक्ट की बदौलत 330 नए यूनिट कायम किए जाएंगे और 2000 अफराद को बराह रास्त रोजगार दस्तियाब होगा। ट्रैफिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 दिन तक बंद रहने के बाद आज ट्रैफिक के लिए दोबारा बहाल की गई। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि शाहराह के कई मकामात पर बर्फबारी होने और पत्थर गिराने की वजह से इसे 24 जनवरी को आमद-रफ्त के लिए बंद किया गया था। ताहम मुतल्लिका एजेंसियों की कोशिशों की बदौलत आज सुबह 11 बजे गाड़ियों की आवाजाही को बहाल किया गया और शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर दरमियाना गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की इजाजत दी गई। नुमाइंदे ने मजीद खबर दी है कि आज दिन भर काजीगुंड सेक्टर में हल्की बर्फबारी होती रही, ताहम रामबन सेक्टर में मौसम खुशगवार रहा। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 18.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।